Hello friends, this time I'm back sooner because I find there is a lot of confusion regarding MISC. MISC because there are so many guidelines और ultimately थोड़ा थोड़ा differences होने की वजह से everyone is confused कि करना क्या है, कौन से patient को MISC कहेंगे, क्या है, क्या नहीं है. So this is my understanding of MISC. Of course it is based on standard guidelines. What you need to remember is that the most important term in this is inflammatory. I'll explain what, how. Now see, कोविड वायरीमिया हो रहा है but the immunity of the patient is good, then usually the patient suffers from mild illness or he recovers, which is the case in most of the children. But if there is COVID viremia and the immunity becomes dysfunctional, dysfunctional immunity is usually I'm saying, usually seen in at-risk group children, that is age less than 1 year, that is infancy, when the immunity is immature. Chronic illnesses, comorbidities like diabetes, immunosuppressed patients like nephrotic syndrome, very common, also malignancies and those on chronic steroids, and autoimmune disorders. But remember, immunity can become dysfunctional also in healthy children. So, agar immunity becomes dysfunctional, then what develops is MISC. So, when should you suspect? Any age group, I'm saying any age group means from 0 to 19 years of age with fever more than equal to 3 days. वैसे तो considering the current scenario, अगर fever एक दिन का भी है तो it is COVID unless and until proven otherwise. But you have to be very vigilant. You have to maintain a high level of vigilance and monitor very closely, both clinically and laboratory wise. So any age group, फीवर विद ऑफ मोर देन इक्वल टू 3 days ड्यूरेशन, सबसे पहले आप क्या करेंगे? फर्स्ट थिंग, यू मैनेज एयरवे ब्रीदिंग एंड सर्कुलेशन ऑफ दैट चाइल्ड. दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. नेक्स्ट हम कराएंगे कुछ इन्वेस्टिगेशंस. ना जो रिसेंट गाइडलाइंस आए हैं, दे हैव डिवाइडेड इन्वेस्टिगेशंस इनटू टायर 1 एंड टायर 2. टायर 1 इज बेसिकली रिफर्ड टू एज मिस्क स्क्रीनिंग. टायर 1 में वो इन्वेस्टिगेशंस हैं which are available at almost all the health facilities wherever you are posted, whether in periphery or in good corporate hospitals in the center with all facilities. तो ये investigations almost हर जगह available हैं और हम लोग आसानी से करा सकते हैं. So the first of this investigation is a complete blood count. इसमें mainly हमें दो चीज़ें देखनी है. सबसे पहली चीज़ तो WBC देखनी है और दूसरी चीज़ है platelets. WBC में क्या है? अगर पॉलीमॉर्फ्स ज़्यादा बढ़े हुए हैं, यूजुअली पॉलीमॉर्फ्स कब बढ़े हुए होते हैं? जब बैक्टीरियल इन्फेक्शन. लेकिन कोविड वायरस होने के बाद भी इसमें पॉलीमॉर्फ्स बढ़ते हैं. तो अगर न्यूट्रोफिलिया है एंड ALC, दैट इज एब्सोल्यूट लिम्फोसाइट काउंट, इज लेस देन 1000 पर क्यूबिक मिलीमीटर. नाउ व्हाट इज ALC? सपोज किसी पेशेंट का TLC है 4000 और उसका लिम्फोसाइट परसेंटेज है 10. तो एब्सोल्यूट लिम्फोसाइट काउंट क्या होगा? इट विल बी 10 of 4000, which comes to be around 400. Therefore ALC of this patient is 400. तो अगर किसी का ALC 1000 से कम है, then you must keep a high vigil. He can be MISC screen positive. He can be, I'm saying. नेक्स्ट इन्वेस्टिगेशन है, हम दो इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स कराते हैं. एक CRP है, दूसरा ESR है. अगर CRP की वैल्यू मोर देन 5 मिलीग्राम्स पर डेसीलीटर है या ESR की वैल्यू मोर देन 40 मिलीमीटर इन फर्स्ट आवर है, देन ऑल्सो दिस पेशेंट कैन बी मिस्क स्क्रीन पॉजिटिव. यहाँ पे आप CRP की यूनिट्स का ध्यान रखना, क्योंकि द यूनिट्स आर 5 मिलीग्राम पर डेसीलीटर. सम लैब्स रिपोर्ट CRP इन मिलीग्राम पर लीटर. नेक्स्ट टेस्ट हमें जो कराना है वो है LFT. LFT में हमें केवल एक चीज़ देखनी है, मेनली एल्ब्यूमिन. एल्ब्यूमिन अगर 3.5 ग्राम पर डेसीलीटर से कम है. एंड द लास्ट टेस्ट इज RFT. इसमें हमें इलेक्ट्रोलाइट्स देखने हैं, बेसिकली लो सीरम सोडियम आयन, दैट इज लेस देन 135 मिलीमोल पर लीटर. तो हमने क्या 4 टेस्ट कराए हैं? एक CBC कराया है, दूसरा CRP ESR कराया है, तीसरा LFT एंड फोर्थ इज RFT. सो दीज आर वेरी कॉमन टेस्ट, हर जगह अवेलेबल होते हैं, आप आसानी से करा सकते हैं. अब क्या है, अगर CRP या ESR पॉजिटिव है
और बाकी 3 टेस्ट मतलब सीबीसी में जो 3 पॉइंट्स हैं, एलएफटी में हाइपोएल्ब्यूमिनीमिया और आरएफटी में हाइपोनेट्रीमिया, इन पांचों पॉइंट्स में से अगर कोई एक फीचर और पॉजिटिव है तो मिस्क स्क्रीन इज पॉजिटिव. इन दैट केस यू विल प्रोसीड ऑन टू टायर 2 इन्वेस्टिगेशंस. ठीक है, तो टायर 2 इन्वेस्टिगेशंस में वो इन्वेस्टिगेशंस है, हो सकता है हर जगह अवेलेबल ना हो. टायर 2 इन्वेस्टिगेशंस का मतलब बच्चा बहुत सिक है. सिक मतलब SIC. SIC is the mnemonic for the investigations which you need to do in Tier 2. S stands for SARS serology. SARS serology मतलब आप कोविड RT-PCR TrueNAT तो करा ही रहे हो, लेकिन serology मतलब एंटीबॉडीज टू SARS-CoV-2 आपको करवाना पड़ेगा. दूसरा, इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स. अभी तक हमने टायर 1 में केवल CRP ESR कराया था. नाउ वी नीड टू डू LDH D-dimer fibrinogen, प्रोथ्रोम्बिन टाइम APTT एंड प्रोकैल्सिटोनिन इंटरल्यूकिन 6 लेवल्स. जो भी फैसिलिटी हमारे पास अवेलेबल है, जैसे भी है, बेस्ट पॉसिबल हम करें. और तीसरी चीज़ है कार्डियक वर्कअप. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि मिस्क में द कॉम्प्लिकेशंस आर यूजुअली द कार्डियक कॉम्प्लिकेशंस एंड दीज आर द मोस्ट फेटल कॉम्प्लिकेशंस ऑल्सो. कार्डियक वर्कअप में हमें ECG इको करवाना है और दूसरा हमें करवाना है BNP TROP-T. BNP इज ब्रेन नाइट्रोयूरेटिक पेप्टाइड एंड ट्रोपोनिन T. अगर जैसे कुछ सेंटर्स हैं वहाँ BNP TROP-T नहीं अवेलेबल है, आप सिंपल CPK MB भी करवा सकते हो. आप ये देखने के लिए कि मायोकार्डियल इन्वॉल्वमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है. इको इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आप उसमें कॉरोनरी आर्टरीज पे कमेंट कर सकते हो. बट एट द सेम टाइम यू हैव टू इवेल्युएट फॉर ट्रॉपिकल इन्फेक्शंस लाइक डेंगू एटसेट्रा, क्योंकि ये सीजन आ रहा है इस चीज़ का, तो आपको ये नहीं नज़रअंदाज करना है कि और कोई बीमारी हो नहीं सकती है. देन देयर इज़ वन मोर क्राइटेरिया. इट इज़ अ क्लिनिको इन्वेस्टिगेशनल क्राइटेरिया और इसमें 4 पॉइंट्स हैं. सबसे पहले है क्लिनिकल फीचर्स. क्लिनिकल फीचर्स 5 हैं. रैश कंजंक्टिवाइटिस या म्यूकोक्यूटेनियस इन्वॉल्वमेंट, हाइपोटेंशन शॉक, मायोकार्डियल डिस्फंक्शन, पेरिकार्डाइटिस, कोरोनरी एब्नॉर्मैलिटीज, ये आपको इको में मिलेगा. कोएगुलोपैथी, बच्चा बहुत सिक है, ब्लीड कर रहा है, गैस्ट्रिक हैमरेज हो रहा है. GI डिस्टर्बेंसेस लाइक एब्डोमिनल पेन, डायरिया और वॉमिटिंग. लैब मार्कर्स, CRP ESR तो आपने करवा ही लिया है और प्रोकैल्सिटोनिन. अगर क्लिनिकल फीचर्स और लैब मार्कर्स इन दोनों को एक्सप्लेन करने के लिए कोई भी अदर कॉज नहीं मिल रहा है और साथ में आपको कोविड का स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन मिल रहा है, मतलब या तो कोविड टेस्ट पॉजिटिव है या कोविड सेरोलॉजी पॉजिटिव है, या आपको हिस्ट्री मिल रही है द पेशेंट वाज इन कांटेक्ट विद सम एल्डर हु हैज रिसेंटली बीन COVID positive, who has recovered or who was COVID positive, then in that case also the criteria for MISC is fulfilled and then you need to move further. From this we see कि अगर diagnostic criteria positive है और Tier 2 investigations positive हैं, इन दोनों में से कोई भी चीज़ positive है तो possibility बहुत strong है कि you are dealing with multi-system inflammatory syndrome. इसमें the most important term is inflammatory. I'm repeating it again. तो ट्रीटमेंट में बेसिकली 2 ट्रीटमेंट है. इन्फ्लेमेशन हो रहा है तो हमें एंटी इन्फ्लेमेटरी देना है. एंटी इन्फ्लेमेटरी इज IVIG 2 ग्राम पर kg IV over 2 days and methyl prednisolone 1 to 2 milligram per kg per day. Along with this you need to give antibiotics and supportive care. स्टेरॉइड्स यूजुअली जो पहले गाइडलाइंस आई थी उसमें पल्स स्टेरॉइड्स का भी रोल था, but now the guidelines mention methyl prednisolone 1 to 2 mg per kg per day usually to be started. This I am talking about IAP and MOHFW. एक्चुअली ये सेफ है, आप मॉनिटर कर सकते हो कि क्या रिस्पॉन्स चल रहा है लो डोज स्टेरॉइड्स का. लेकिन इफ द पेशेंट इज इन शॉक, कार्डियक डिस्फंक्शन और MODS, you definitely need to give steroids. If there is no improvement, आपने IVIG दे दिया, मिथाइल प्रेट दे दिया 1 to 2 मिलीग्राम पर kg पर डे से, लेकिन उसके क्लिनिकल और laboratory deterioration is persisting, then in that case you can repeat IVIG or you can give pulse methylpred 10 to 30 milligram per kg per day for 3 to 5 days.
मतलब हाई डोज में आप मिथाइलप्रेट दो, ज़्यादा इन्फ्लेमेशन हो रहा है तो ज़्यादा डोज में एंटी इन्फ्लेमेटरी देनी है उसको सप्रेस करने के लिए, बट दिस यू हैव टू गिव विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट बिकॉज इट हैज़ अदर साइड इफेक्ट्स ऑल्सो। इसके अलावा दो ड्रग्स और बहुत इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहले है एस्पिरिन। एस्पिरिन यू नीड टू गिव एट 3 to 5 मिलीग्राम पर केजी पर डे, मैक्सिमम 81 मिलीग्राम पर डे। जो गाइडलाइंस अभी आई हैं, they have mentioned two indications for starting aspirin. These are thrombocytosis, that is platelets more than 5.5 lakh per cubic millimeter, and coronary aneurysm with a Z-score more than equal to 2.5. But remember, आप नेल्सन से अपने कावासाकी डिजीज रिवाइज करो. There you will see that aspirin in high doses, high dose aspirin means 30 to 50 milligram per kg per day. इस डोज में आप एस्पिरिन अगर देते हो, it is given in 6 hourly divided doses. So this also acts as an anti-inflammatory. So recent guidelines have not considered aspirin as an anti-inflammatory thing. They have considered only IVIG and methylprednisolone. But aspirin in high doses also is anti-inflammatory. The other drug is enoxaparin. Enoxaparin dose is 1 milligram per kg per dose subcutaneous BD in more than 2 months of age, and 1.5 milligram per kg per dose subcutaneous BD in less than 2 months of age. And there are 3 indications for starting enoxaparin as per the recent guidelines. These are established thrombosis, coronary aneurysm with a Z-score more than 10, and low cardiac output, matlab left ventricular ejection fraction less than 35%, which obviously you will come to know only after getting an echocardiogram done. Suppose IVIG और pulse methylpred देने के बाद भी there is no improvement, then in that case you may go for other inflammatory markers like interleukin 6, cytokine levels, and consider biologicals. Okay, biologicals, that is anakinra, etc., or tocilizumab. To follow up these patients, you have to taper steroids over 2 to 3 weeks along with monitoring of the inflammatory markers. क्योंकि सारा गेम यहाँ पे इन्फ्लेमेशन का ही है, तो आपको फीवर इज ऑल्सो अ क्लिनिकल मार्कर ऑफ इन्फ्लेमेशन. अब ये फीवर इन्फेक्शन पर से, मतलब वायरस पर से की वजह से आ रहा है या इन्फ्लेमेशन की वजह से आ रहा है, दिस इज वॉट यू नीड टू डिफरेंशिएट, फॉर विच यू नीड टू गेट द इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स डन. आई होप आई एम क्लियर. तो इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स के बारे में देयर इज सर्टन clarifying points. These are, first thing is that CRP is a good marker for initiating the therapy. LDH is a good marker for follow-up, and neutrophil lymphocyte ratio, it is a good marker for prognostication. If NLR is more than 5.5, obviously it is not a good prognosis. Cardiac follow-up कैसे करोगे आप? ECG 48 hourly कराओ. थेरापेटिकली बहुत बेनिफिशियल नहीं होगा. इको आपको 2 बार कराना है. सबसे पहले एट 7 to 14 days ऑफ इलनेस पे, ये देखने के लिए कि क्या इन्फ्लेमेशन का इफेक्ट कॉरोनरी आर्टरीज पे पड़ने लगा है, कॉरोनरी एन्यूरिज्म डेवलप होने लगा है या नहीं. और दूसरी बार 4 to 6 weeks ऑफ इलनेस पे. और मान लीजिए इनमें से ये इको अगर एबनॉर्मल था तो 1 साल के बाद भी आपको इको रिपीट करवाना पड़ेगा. So to summarize, any age group, pediatric age group, fever more than equal to 3 days, immediately manage ABC. साथ में आप you look for diagnostic criteria and get the tier 1 and tier 2 investigations if required. अगर diagnostic criteria positive है या tier 2 investigations positive हैं, तो आप उसको MISC मान के चलो, and then you have 3 drugs. First is methylprednisolone or IVIG, which are the anti-inflammatory class of drugs. Second is aspirin, given for thrombocytosis or coronary aneurysm with Z-score more than 2.5, and enoxaparin for established thrombosis I am saying, and coronary aneurysm and low cardiac output, that is left ventricular ejection fraction less than 35%. But remember, antibiotics and supportive care are very important, and you have to keep other illnesses also in mind, क्योंकि sometimes other illnesses can also have this kind of presentation. तो अब ये समझने की बात ये है कि MISC, it can present simply as a febrile inflammatory state. Febrile inflammatory state मतलब बच्चा
वैसे ठीक है, क्लिनिकली आपको वैसे ठीक लगेगा, लेकिन परसिस्टेंट फीवर रन कर रहा है, इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स उसके बढ़े हुए हैं, उस केस में आप लो डोज स्टीरॉयड दे सकते हैं। अब इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स में आपने बहुत सारे करा लिया, LDH, डायमर, ESR, CRP, सब कुछ करा लिया आपने, कोई एक पैरामीटर बढ़ा हुआ है, बाकी बच्चा ठीक है और बाकी पैरामीटर्स भी ठीक हैं, तो आपको इमीडिएटली डोंट रश टू स्टार्ट ट्रीटमेंट। हो सकता है कि फीवर इज बिकॉज ऑफ वायरीमिया, सो यू हैव टू मॉनिटर द लैब्स। आपको रेगुलरली फॉलो अप करना है लैबोरेटरी रिपोर्ट्स की। इफ द ट्रेंड इज इंक्रीजिंग, देन इन दैट केस यू मस्ट अगेन कंसिडर स्टार्टिंग ग्लूकोस्टेरॉइड्स। और अगर इफ द ट्रेंड इज डिक्रीजिंग, पेशेंट भी एफिब्राइल हो जा रहा है 1-2 दिन में, मतलब बेसिकली आपको क्लिनिकल और लैबोरेटरी पिक्चर को दोनों को अकाउंट में लेके चलना है, then in that case you may consider waiting. So मिस्क, देखिए फेब्राइल इन्फ्लेमेटरी स्टेट एक ऐसा स्टेट है जिसमें मल्टी सिस्टम इन्वॉल्वमेंट हो ना हो, लेकिन इन्फ्लेमेशन जरूर प्रेजेंट है। दिस इज समथिंग आई वांटेड टू स्ट्रेस अपॉन। द अदर इज अ कावासाकी डिजीज लाइक प्रेजेंटेशन। कावासाकी डिजीज आपको अच्छे से पता है कि क्या होता है उसमें। बायलेटरल कंजंक्टिवाइटिस, उसमें ओरल इन्वॉल्वमेंट, ओरल म्यूकोसल चेंजेस, स्ट्रॉबेरी टंग, पेरिओरल क्रैकिंग, देन देयर इज सर्वाइकल लिम्फेडिनोपैथी। यूजुअली आपको मिस्क के पेशेंट्स में लिम्फेडिनोपैथी नहीं मिलेगी। देन देयर इज रैश, एरिथमा एंड एडिमा ऑफ लिम्स, ऑल दीज थिंग्स आर प्रेजेंट। तो अगर केडी लाइक प्रेजेंटेशन है, तो in my opinion, the true drugs which are going to help you are aspirin and IVIG to the utmost. क्योंकि कावासाकी डिजीज लाइक प्रेजेंटेशन है, आपको कोरोनरी एन्यूरिज्म की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है, तो IVIG और एस्पिरिन आप देख सकते हैं और मिथाइल प्रेडनिसोलोन भी इफ रिक्वायर्ड यू कैन गिव। और थर्ड है टिपिकल जो फ्रैंक मिस्क होता है, इट यूजुअली प्रेजेंट्स विद MODS, shock, cardiac, typical cardiac involvement. In that case, you have to obviously consider all these 3 drugs. There is one more entity, PIMS-TS. PIMS-TS भी क्या है? It is एक अलग नाम है बेसिकली मिस्क के लिए। तो इट इज टेम्पोरली एसोसिएटेड। टेम्पोरली एसोसिएटेड मतलब जो हम लोग ने पहले देखा था कि patient has come in, those patients in whom you do not get any positive investigation for COVID, but you get the history that the patient has come in contact with some COVID positive patient. That is temporally associated. I guess I have now been able to make things more clear. Thank you for a patient listening and have a good day.